एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच। सोचे सोच न होवई जे सोची लखवार चुपै चुप न होवई जे लाए रहा लिवतार। भुखिया भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया पार। सह सियाणपा लख होए ता इक न चलै नाल। किव सचियारा होइए किव कूड़े टुटे पाल। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ। ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ। ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ। ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ। ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ। ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ। ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਦੇ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ। ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ। ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ। ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਈ ਖਾਹੇ। ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ। ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ। ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ। ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦਿਸੈ ਦਰਬਾਰ। ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ। ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ। ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ। ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ। ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ। ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ। ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰਖੀਐ ਭਾਉ। ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ। ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਬਤੀ ਮਾਈ। ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ। ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ। ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ। ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ। ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਧਰੇ। ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ। ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ। ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ। ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ। ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ। ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੁਖ ਸਾਲਾਹਣ ਮੰਦੋ। ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ। ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ। ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਭਾਵੈ ਮਾਨ। ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ। ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ। ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ। ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਲਿਖਣ ਹਾਰ। ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ।
ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭਵਨ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥਿਓਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੋ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਪਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੌਨ ਲਿਵ ਲਾਇ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਤਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨ ਇਹ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇ ਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾ ਨਾਉ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਪ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨੁ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੁ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੈ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ, ਏਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੇਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ, ਕੇਤੇ ਅਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ। ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ। ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ,
ਕੇਤਿਆ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ। ਅਮੁੱਲ ਆਵਹਿ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹਿ। ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਅਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਅਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ। ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ। ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ। ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ। ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ। ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹਿ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹਿ। ਏਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ। ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ। ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਬਹਿ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ। ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਓ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ। ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ। ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ। ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ। ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ। ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ। ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ। ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ। ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਦ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ। ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ। ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ। ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ। ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ। ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ। ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ। ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ। ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ। ਆਦੇਸ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲਖ ਹੋਇ, ਲਖ ਹੋਵੈ ਲਖ ਵੀਸ। ਲਖ ਲਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ। ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ। ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ। ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ। ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ। ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨ ਕੋਏ। ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ। ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ। ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ। ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ। ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼। ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਕੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਤੂ ਉਪਦੇਸ। ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ। ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ, ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ।
केते देव दानव मुन केते रत्न समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत। ज्ञान खंड मह ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद। सरमखंड की बाणी रूप, तिथै घाट घड़िया बहुत अनूप। ताकियां गल्लां कथियां न जाहे, जे को कहे पिछै पछताए। तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरा सदा की सुध। कर्मखंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर। तिथै जोध महाबल सूर, तिन में राम रहया भरपूर। तिथै सीतो सीता में ममाहे, ताके रूप न कथने जाहे। ना ओहे मरह न ठागे जाहे, जिनकै राम बसै मन माहे। तिथै भगत वसै के लोह, करੈ आनंद सच्चा मन सोए। सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल। तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत न अंत। तिथै लोह लोह आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार। ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ। ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ। ਪਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲੇ। ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ। ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ। ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ। ਅਬ ਤੋ ਜਾਰੇ ਮਾਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਏ, ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸੰਦੋਰਾ। अब तो जारे मारे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ संधोरा। छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा। छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा। मन रे छाड़ परम प्रगट होए नाचो, या माया के पांडे। सूर के संग मुख रन ते डर पे, सती के साचे पांडे। सती के साचे पांडे, सती के साचे पांडे। छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा। छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा। अब तो जारे मारे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ संदोरा। अब तो जारे मारे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ संदोरा। छाड़ रे मन बोरा,
ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ। काम क्रोध माया के लीने या विद जगत विगूता, काम क्रोध माया के लीने या विद जगत विगूता। कह कबीर राजा राम न छोड़ो, सगले ऊंच ते ऊंचा। कह कबीर राजा राम न छोड़ो, सगले ऊंच ते ऊंचा, सगले ऊंच ते ऊंचा, सगले ऊंच ते ऊंचा। छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा। अब तो जारे मारे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ संदोरा। अब तो जारे मारे सिद्ध पाइए, लीनो हाथ संदोरा। छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा, छाड़ रे मन बोरा, डगमग छाड़ रे मन बोरा। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु समझ मन बोरा रे, समझ मन बोरा रे, समझ मन बोरा रे। एक बड़े प्यारी घटना याद आ गई।
मेरे 9वें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहब जी के समय की घटना। एक सिख हुआ है इतिहास में जिसका नाम है भाई कल्याणा। ये बनारस में रहता है। गुरु नानक का सिख है, नाम लिया, अमृत वेले उठता है, नाम जपता है, और उसने एक धर्मशाल खोल कर रखी है। उस जमाने में गुरुद्वारों को धर्मशाल कहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, उसे धर्मशाल कहते थे, धर्म का स्थान। वहां पर वो संगत को नाम जपाता है, अमृत वेले उठाता है। अमृत वेले वहां पर संगत इकट्ठी होती है, वो नाम जपाता है। नियत निरंकार की बनारस में गंगा के थोड़ी ही दूर उसका स्थान है, धार्मिक स्थान धर्मशाल। नियत निरंकार की बीमार पड़ गया, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। संगत को चिंता हुई। संगत ने अरदास की, बेनती की गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों में, 9वें गुरु नानक पाशा के चरणों में। 9वें गुरु नानक गुरु तेग बहादुर साहब जी चलकर उसके पास आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कितनी भक्ति होगी उसकी, कितना बड़ा उसका, कितने बड़े भाग्य होंगे उसके कि गुरु तेग बहादुर साहब जी चल के उसके घर में, उस धर्म स्थान पे आए, धर्मशाल में आए। गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरण पड़ते ही, दर्शन करते ही वो अरोग हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। देह अरोग हो गई। इतिहास में लिखे गुरु तेग बहादुर साहब जी उसके स्थान पर कई दिनों तक रुके, कई दिनों तक, काफी समय तक रुके। यहाँ तक लिखा है कई हफ्तों तक रुके। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक दिन वो समय आया कि सारी दुनिया दूर दूर से गंगा में स्नान करने आ रही है। तो भाई कल्याणा जी तो ज्ञानी है, सब कुछ ज्ञान है उन्हें नाम का, संगत को नाम से जोड़ते हैं, अमृत वेले से जोड़ते हैं। उस दिन गुरु तेग बहादुर साहब जी को बेनती करते हैं, पातशाह बहुत बड़ा दिन है, आज आपको भी गंगा में स्नान करना चाहिए, हम सब जा रहे हैं गंगा में स्नान करने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी भाई कल्याणा जी की तरफ देख के मुस्कुराए, कहने लगे कल्याणा, स्नान करने में कोई हानि नहीं है, पर तू किस लिए जाना चाहता है गंगा में स्नान करने? कहने लगे आज गंगा के स्नान करने में बहुत फल मिलता है, इतना बड़ा तीर्थ है, आज के दिन स्नान करने से बहुत फल मिलता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे भाई कल्याणा तुझे तो ज्ञान है, पर गुरु तेग बहादुर साहब जी समझ गए कि ये पुरातन युग जो दास ने पहले बात कही, जो भीतर डाल दी गई है हमारे, वो इतनी जल्दी निकलती नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे स्नान करने में कोई हानि नहीं है, जब जी जाया कि करो ना, आज के दिन ही क्यों, और ऊपर से इसलिए जाना है कि वहां पर पाप खत्म हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो अमृत वेले उठ के नाम जपते हैं, नाम ने तो सारे पाप खत्म कर दिए। अगर गंगा को नाम जपने वाला तो चाहे तो, दास ने कल भी ये वचन गुरु तेग बहादुर साहब जी के लिखे हुए जो है, वही गुरु तेग बहादुर साहब जी ने भाई कल्याणा से कहे कि नाम जपने वाला चाहे तो सारी सृष्टि को अपने पास बुला ले। अगर तू कहे तो गंगा जी को यहाँ बुला लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई कल्याण हैरान हुआ, कहने का पाछा ऐसे कैसे हो सकता है, लोग गंगा के पास जाते, गंगा चल के थोड़ा आती है हमारे पास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने कहा भाई कल्याणा, नाम की ताकत को तूने अब तक पहचाना नहीं। फिर सामने एक पत्थर पड़ा था, बहुत बड़ा सा, संगत जी, संगत बहुत सारी खड़ी है। उस धर्मशाल के सामने एक बड़ा सारा पत्थर पड़ा था, कई सालों से पड़ा था। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने के उस पत्थर को हटा दो, गंगा से काफी दूर। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने को उस पत्थर को हटा दो। जैसे पत्थर को हटाया, जैसे चश्मा फूट पड़ता है ना, ऐसे पानी फूट पड़ा वहां से, और पानी इतना जोरदार फूटा, इतिहास में लिखा है कि कुछ ही समय में वो जगह भर गई,
कुछ ही समय बाद गलियां भर गई, शहर भरने लग गया पानी से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत ने बेनती की, पातशाह शायद डूब जाएगा। फिर तेग बहादुर साहब जी कहने लगे, ये गंगा है जिसके पास आप जाना चाहते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे, पातशाह समझ गए, आपने ज्ञान दे दिया कि नाम जपने वाले के पास गंगा तो खुद आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बढ़ियाई नाम की है। गुरु तेग बहादुर साहब जी कहने लगे, ठीक है, अगर ज्ञान हो गया है तो वो पत्थर उठा के वापस वहीं पर रख दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो पत्थर उठाकर संगत ने वापस उस जगह पर रखा, वो पानी बंद हो गया। गुरु तेग बहादुर साहब जी ने प्रत्यक्ष दिखा दिया कि जहाँ नाम जपने वाले के चरण पड़ते हैं, तीर्थ चल कर आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरबाणी में तो इसके प्रति बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं कि तीर्थ बड़ा के हर का दास। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कल भी ये पॉइंट आया था ना कि नाम जपने वालों की वजह से तीर्थ है, तीर्थ की वजह से नाम जपने वाले नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जहाँ जहाँ गुरु नानक ने चरण डाले, तीर्थ बन गया। जहाँ जहाँ गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने कमर कसा खोलकर केवल बैठे 5 मिनट के लिए, वहां पे तीर्थ बन गया। जहां जहां राम जी गए वहां तीर्थ बन गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीर्थ बना क्योंकि नाम जपने वाले के चरण पड़े। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी के समय की बात है, नानक सर के। बेनती की सेवादारों ने कि फलाने की मृत्यु हो गई, अस्थियां आई हैं, गंगा में डालने जाना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी मुस्कुरा के पूछते, गंगा में डालने से क्या होगा? कहने लगे, शास्त्रों में लिखा है कि जब तक अस्थियां गंगा में रहती हैं, जिसकी भी अस्थियां हो उसे स्वर्ग, तब तक स्वर्ग में रखा जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे, ठीक है, जब तक अस्थियां गंगा में है तब तक स्वर्ग है। जब गंगा की सफाई की जाती है, सारी अस्थियां बाहर निकाल के फेंकी जाती है। फेंकी जाती है कि नहीं? कहने लगे, हाँ फेंकी जाती है। तब मतलब वो उनको स्वर्ग से निकाल के नरक में डाल दिया जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा ईश्वर सिंह जी कहने लगे, बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे कि अपना संगी हो ना जो नाम जपता हो, कहते थे उसकी अस्थियां पीस कर ले आया करो। और यहाँ पर नानक सर में जहाँ पर संगत चल कर आती उसमें रेता होता था, वहाँ पे डाल दिया करो। संगत के चरण पड़ेंगे, पापी से पापी भी होगा, मुक्त हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक फिर से जन्म मिल जाएगा कि नाम जप लें, एक मौका फिर मिल जाएगा, 84 लाइन भगतनी पड़ेगी। संगत के चरण, नाम जपने वाले संगत साधु के चरणों की धूड़ मिल जाएगी उन अस्थियों को। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। नाम जपने वालों के चरण धूड़ छू जाए तो इसके बारे में बड़ी प्यारी कथा है, वो दास फिर कभी लेगा। गुरु नानक पाशा से सवाल किया था किसी ने कि नाम जपने वाले के चरण धूड़ की ताकत क्या है, तो गुरु नानक पाशा ने सच्ची घटना अपने मुखार बिंद से सुनाई थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ अपने मन को समझाएं कि मन ज्ञान को समझ कब तक डर कर जाता रहेगा जहाँ भी जाना है, कब तक डर कर तीर्थों पे स्नान करेगा, कब तक डर कर नाम जपेगा। निडर होके जप। निडर कैसे होगा? सिंपल सी बात है, ये वाइस वर्सा है ना, सिंपल है। नाम जपेंगे तो डर खत्म होगा, डर खत्म होगा तो नाम जपेंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसका मतलब समझो, नाम जपना, पहले डर नहीं खत्म होगा, पहले नाम जपना। पर एक भाव मन में रखो, पाचा मेरा डर खत्म कर, मुझे मोह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से ऊपर उठा। ये मांगना कुछ गलत नहीं है। कबीर जी ने तो हर चीज मांगी, हर चीज। मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, मुझे घी भी दे, मुझे खाट भी दे, चौपाई, मुझे अच्छी पत्नी भी दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खाट मांगो, चौपाई, एक एक चीज मांगे, सिरहाना, तलाई, देसी घी
और आखिर में क्या पातशाह, मैं लालच में नहीं मांग रहा तुझसे, मैं इसलिए मांग रहा हूँ कि सब मेरे पास होगा तो मैं मन एकाग्र चित करके तेरा नाम जप सकूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं ना ही कीता लबो एक नाम तेरा मैं फबो। मैं लालच नहीं कर रहा, तेरा नाम जपने के लिए, मन एकाग्र चित होने के लिए मुझे सब कुछ चाहिए ताकि मेरा मन भटके नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और हम तो गुरु से मांग रहे हैं कि काम क्रोध लोभ ओंकार से ऊपर उठा दे। ये तो मांगना जायज है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ताकि पातशाह मेरे ये खत्म कर, ताकि मैं निडर होके तेरा नाम जप सकूं। आज डर के जप रहा हूँ, पर एक समय ला दे कि डर खत्म हो जाए, प्रेम में तेरा नाम जप, कुछ पाने के लिए नहीं, तुझे पाने के लिए नाम जप। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समझ मन बोरा रे, 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 समझ मन बोरा रे। तनी विहुणा पाट पटंबर, पाही सेती जाले, तूड़ी विच लुड़ंदड़ी सोहा, नानक तै सहनाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज फरमा रहे हैं कि मैंने अपने सारे रेशमी कपड़ों को आग लगा दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात को ध्यान से समझना कि मैंने अपने जितने भी सुंदर कपड़े थे सबको आग लगा दी। क्यों? कि मैंने ये नोट किया, जिस चीज से मुझे प्रभु भूल जाए मुझे वो चीज नहीं चाहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धूड़ी विच लुड़ंदड़ी सोहा, नानक तैसा नाले। अगर मैं मिट्टी में भी लिबड़ा हुआ, अगर तुझे अच्छा लगता हूँ तो मैं अपने आप को गंदे कपड़ों से ढक लेता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने उसी सोच पर चोट की है कि तीर्थों के स्नान करने से मन पवित्र हो जाता है। यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज ये कह रहे हैं, यहाँ पर सुन लेना साथ संगत जी, ये ना हो घर में जाके लोग अपने कपड़ों को आग लगा दें। अच्छे प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ना। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, जैसे मेरे प्रभु को मैं अच्छा लगूं, मैं वो काम करने को तैयार हूँ। जिस चीज़ से मुझे प्रभु भूल जाए मुझे वो नहीं चाहिए। अगर मेरे प्रभु को, मुझे ज्ञान हो गया है कि मेरे गुरु नानक को मेरा मन भाता है, मेरा शरीर नहीं। मुझे ज्ञान हो गया है कि अगर मेरा मन साफ है, बाहर से कपड़े गंदे हैं, मिट्टी से भरे हुए हैं, तो भी मैं गुरु नानक को भा जाऊंगा। और अगर कितने भी सुंदर कपड़े पहन लूं, अगर मेरा मन साफ नहीं तो मैं गुरु को नहीं भाऊंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सोचे सोच ना हो वही, जे सोची लखवार। एक समय की घटना है। गुरु नानक पातशाह, मेरे धन गुरु नानक सच्चे पातशाह, जब भाई मर्दाना जी ने शरीर त्याग दिया, उसके बाद मेरे गुरु नानक पातशाह ने फिर से कभी यात्रा नहीं की, उदासी नहीं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसके बाद बुजुर्ग हो गए गुरु नानक पातशाह, तब भी उन्होंने हल जोता, खेतों में मेहनत की, आराम से नहीं बैठे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम जैसे को शिक्षा देने के लिए कि जब तक शरीर में जान है काम करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह हल वाह रहे हैं, और वहां पे हल वाहने के बाद जब खेती करती है तो बहुत सारा घास काट के रखते हैं ना जानवरों के लिए। भाई लैना जी किसी शादी में से होकर आ रहे हैं, बहुत सुंदर वस्त्र पहने हुए उन्होंने, भाई लैना जी ने, अति के सुंदर वस्त्र। गुरु नानक पातशाह ने उनकी तरफ देखा
और कहने लगे ये घास उठा। वो घास कीचड़ से भरी हुई गीली। कहने लगे सर पे उठा ले 2 बंडल और साथ में चल। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो भाई लैना जी तो हुक्म का रूप थे, एक सेकंड भी नहीं सोचा, एक सेकंड मन में ख्याल भी नहीं आया। वो कीचड़ भरी घास सर पे उठा के और पीछे पीछे चल दिया, आगे आगे गुरु नानक पाचा, पीछे पीछे भाई लैना जी। जब घर पहुंचे तो माता जी कहते हैं आप भी कमाल करते हो, इतने सुंदर कपड़े पहने भाई लैना जी ने और आपने कीचड़ भरी घास उन्हें सर पे उठा दी, पूरा उनके कपड़े कीचड़ से भर गए पर कीचड़ बह रहा है, ये क्या किया आपने? तो मेरे गुरु नानक पातशाह कहते हैं तुझे ये कीचड़ दिखाई दे रहा है, जब किसी राजा को राजगद्दी पर बिठाना होना तो उसे केसर से स्नान किया जाता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी नजरों से देख एक केसर से भीगा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि गुरु नानक पातशाह जानते थे इन्हें कौन सी गद्दी मिलनी है, सारी सृष्टि की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और यही ये पंक्तियां गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, तूड़ी विच लुंदी सोहा नानक तैसा नाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर ये पंक्तियां पढ़ के ना बाबा कुंदन सिंह जी याद आ गए। तड़ी विहूणा पाट पटंबर पाई सेती जाले। बाबा कुंदन सिंह जी जिन्होंने दास को कीर्तन की दात बख्शी, इनका जीवन साथ संगत जी इतना सादा कि कुछ पहलू ऐसे हैं जिन पे सुनकर आदमी हैरान ही हो जाता है। सारा जीवन उन्होंने कभी आईना नहीं देखा, उनके कमरे में आईना ही नहीं होता था, शीशा ही नहीं देखा अपना चेहरा। हम घंटों आईने के सामने बैठे रहते हैं, उन्होंने अपना चेहरा ही नहीं देखा। देखा तो गुरु नानक को कि भाई आंखें देखे तो गुरु नानक। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई भी कीमती सामान, कोई भी बहुत सुंदर कोई चीज उन्हें लाके दे देता तो वो अपने लिए इस्तेमाल नहीं करते। इतना सुंदर, ये तो बाबा नानक सिंह जी को अच्छा लगेगा, ये तो बाबा ईश्वर सिंह जी को अच्छा लगेगा, ये तो गुरु नानक के चरणों में होना चाहिए। कोई बहुत प्यारी बहुत सुंदर चप्पल लाके दे दे अमेरिका से, यहाँ से वहाँ से लाके, वो चप्पल वो भेज देते थे भोरे साहब में जहाँ बाबा नानक सिंह जी के स्थान है, वहाँ पर रख देते थे उनके आगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर उनको कोई कपड़े प्रेस करके दे दे तो कपड़ों को पहले पूरा क्रीज खराब करते थे अच्छी तरह से, फिर पहनते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल के पहले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो पंक्तियां गुरबानी कह रही हैं उस पर अपना जीवन ढाला उन्होंने। धनी विहूणा पाट पटंबर बाही सेती जाले, तूड़ी विच लुड़ंदड़ी सोहा नानक तै सह नाले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अवस्था इतनी ऊंची कि जिसकी तरफ देख ले जो चाहे दे दे, केवल एक दृष्टि से। और मन कहाँ रखा है? इतना नीवा, मन नीवा मत ऊंची। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समझ मन बारा रे, 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 हृदय कपट हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहाँ बिलोवस पानी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत कबीर जी का ये उच्चारण किया हुआ ये शब्द, हृदय कपट मुख ज्ञानी, झूठे कहाँ बिलोवस पानी। हृदय में तेरे कपट है, मुख से तो ज्ञान की बातें करता है, क्यों पानी को रिड़क रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव कुछ प्राप्त नहीं होगा, खाली का खाली रह जाएगा।
हृदय में कपट है, मुख से ज्ञान की बातें करता है। ध्यान देना, हमारा प्रकरण वही है, सोचा सोच न हो गई। कबीर जी इसी बात को अलग अलग ढंग से समझा रहे हैं। हृदय कपट, मुख ज्ञानी, झूठे कहाँ बिलोवस पानी। अगर मक्खन चाहिए तो दही को रिड़कते हैं ना, तो मक्खन निकलता है। पानी को रिड़कने से कुछ नहीं मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी कह रहे हैं तेरे हृदय में कपट है, मुख से तो ज्ञान की बातें करता है। ये ऐसे ही है जैसे पानी को कोई रिड़क रहा हो कि मक्खन निकल आएगा, नहीं निकलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक तेरे अंदर साफ नहीं, कुछ प्राप्त नहीं होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अंदर साफ तीर्थों पर स्नान करके नहीं होगा। काया मांजस कौन गुना, काया कितनी बार भी धोले, इस शरीर को 1000 बार करोड़ बार धोले, जो गट भीतर है मलना। मैल तेरे हृदय पे चढ़ी है, धो तू शरीर को रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कोई फायदा नहीं। लौकी 68 तीर्थ नाई, कौरापन तो ना जाई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहे कबीर बिचारी भव सागर तार मुरारी। कबीर जी कहते मैं विचार विचार कर ये बात कह रहा हूँ। सारा अपनी जितनी सोचने की शक्ति प्रभु ने मुझे दी है, सारी शक्ति लगा कर एक बात कह रहा हूँ कि मैं विचार कर कह रहा हूँ कि मेरी अरदास है प्रभु से कि मुझे तार दे। बस नाम ही तार सकता है और कुछ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कुछ नहीं तार सकता, ना ज्ञान की बातें, ना तीर्थों पे स्नान, कुछ भी तेरा भला नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। लौकी 68 तीर्थ नाई, कौरापन तो ना जाई। इस ये जब पंक्तियां कबीर जी ने उच्चारण की थी, इस शब्द को उच्चारण करने के पीछे घटना है छोटी सी, वो भी सुन लेते हैं। कबीर जी के पास बहुत सारे लोग आकर रहते थे, शिष्य, ज्ञान हासिल करने के लिए। एक समय आया, बहुत सारे लोग उनके घर में आए, साधु महात्मा। कबीर जी ने सेवा की। जब वो जाने लगे तो उन कबीर जी का एक शिष्य कहने लगा मैं भी इनके साथ जाऊं। ये सब जा रहे हैं तीर्थों पर स्नान करने, मेरा भी मन है कि मैं तीर्थों पर स्नान कर रहा हूँ, मेरे भी पाप दूर हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैं भी पवित्र हो जाऊं। कबीर जी कहने लगे तुझे मेरे साथ रहते इतना समय हो गया, तुझे ज्ञान नहीं हुआ? कबीर जी के समझाने के बाद वो उदास हो गया, पर फिर से बेनती की मुझे जाने दो, मैं इनके साथ हुआ हूँ, आपकी प्रसन्नता हो तो जाऊँ, आपको नाराज करके मैं नहीं जाना चाहता। कबीर जी समझ गए ये बातों से नहीं समझेगा। कबीर जी ने उसे उस वक्त एक लौकी दी जो बहुत कड़वी होती है। लौकी ये कद्दू को नहीं कहते, उस लौकी एक तरह की सब्जी ही होती है, पर वो बहुत ज्यादा कड़वी होती है, दवाई बनाने के काम आती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कबीर जी ने उसे वो लौकी दे दी। कहने लगे मेरा एक काम कर, तू कितने सारे तीर्थों पे स्नान करेगा? कहने लगा हाँ सारे तीर्थों पे स्नान करूंगा। कहने के साथ में इसे भी स्नान कराते जाना, जहाँ पे तू स्नान करे इसे भी कराते रहना। उसने कहा ठीक है, सत वचन जैसे आपको। जब 1-2 साल बाद वापिस आया तो कबीर जी कहने लगे मेरी लौकी कहाँ है? उसने निकाल के दी, ये है। साथ में साधु महात्मा भी बहुत सारे थे जो साथ में गए थे, वापिस आए, फिर से भोजन बना। कबीर जी कहने लगे अब इस लौकी को काट के सबको थोड़ा थोड़ा दे दो। जब सबकी थाली में रखा, कोई खाए ना? बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। ये तो कड़वी होती है, जहर होता है, कैसे खाए? कबीर जी कहने लगे इसने इतने सारे तीर्थों का स्नान किया है, अब इसमें कहाँ जहर है? ये तो अमृत हो गया होगा। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके अंदर की कड़वाहट तो खत्म हो जानी चाहिए, इतने सारे तीर्थों का इसने स्नान किया है, कहाँ इसमें दोष ढूंढ रहे हो? सब ने फिर कबीर जी के वचन मान के मुख में जैसे ही लौकी डाली, सब ने निकाल दी मुंह से। वो कड़वा, जहर के जैसे कड़वा हो गया वो। सब कहने लगे कबीर जी आपके कहने पे खा तो लिए, मुंह में डाल ली, पर ऐसे होता थोड़ा है, लौकी थोड़ा कड़वापन छोड़ देगी अपना तीर्थों पे स्नान करने से। कबीर जी कहते मैं यही तो समझा रहा हूँ, कब से समझा रहा हूँ।
कि लौकी 68 तीर्थ नाई कौरापन तो न जाए। अगर लौकी का स्नान कराने से उसका कड़वापन नहीं गया, इंसान के अंदर के विकार कैसे धुल जाएंगे पानी के स्नान से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर की मैल धुल जाएगी, मन की मैल केवल नाम धो सकता है और कुछ नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दास फिर से एक बात रिपीट कर दे, यहाँ पर गुरबाणी तीर्थों पर स्नान करने का खंडन नहीं कर रही। बाबा नंद सिंह जी वचन किया करते थे, कहते थे धरती के नीचे पानी है, सबको पता है, पर प्रगट तो वहां पे नहीं जहाँ पे कुआं है, जहाँ पे नदी है, जहाँ पे तालाब है। इसी प्रकार भगवान सृष्टि में हर जगह पर है, पर तीर्थों पर प्रगट है ना, इसलिए जाने का मन करता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तीर्थों पर जाने का खंडन नहीं किया, स्नान का खंडन नहीं किया, स्नान करने के तरीके पर, स्नान करने की सोच पर चोट की है। क्योंकि जो ये सोचते हैं कि केवल पानी के स्नान से तर जाएंगे, नहीं होगा जब तक उसमें वाणी शामिल नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नाम के बिना तो नाम तेरो दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले, एक एक चीज में नाम। पूजा कीचे नाम ते आइए, बिन नामे पूज ना हुई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग मंदिर में जाते हैं, नारियल लेके गए, फूल चढ़ाए, माथा टेका, आ गए। भगत चोट करते हैं, कहते कैसी पूजा? पूजा कीचे नाम ते आइए। अगर तू पूजा करने गया है तो बैठ के नाम जप, अगर नाम नहीं जपा तो किसी बात की पूजा। बिन नामे पूज ना हुई, बिना नाम के कोई पूजा नहीं होती, उल्टा पाप चढ़ता है। गुरु नानक पातशाह के वचन है जन्म साखी में, जो लोग नारियल, फूल, ये सब चीजें लेके भगवान के आगे रखते हैं और नाम नहीं जपते, वो चीजें श्राप देती हैं इंसान को कि तूने मेरा वेस्ट कर दिया मुझे, क्योंकि नाम नहीं जपा। जिस चीज में नाम नहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं। इसकी बहुत प्यारी, बहुत बड़ी घटना है और इसे गुरबाणी प्रमाणित करती है, ये मैं नहीं कह रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर किसी मंदिर में गए हो, किसी भी धार्मिक स्थान पे गए हो, बैठ के 15-20 मिनट नाम नहीं जपा तो कहाँ गए हो? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना कोई चेंज आएगा, ना कुछ ज्ञान प्राप्ति होगी, कुछ नहीं होने वाला। कई लोग कहते हैं हम रोज गुरुद्वारे माथा टेके जाते हैं, कुर्बान। गुरु के दर्शन करना कुर्बान, पर गुरु कहता क्या है वो तो करो। जिसे माथा टेक रहे हो वो कह रहा है कि अमृत ले उठ के नाम जपो, जिसे माथा टेक रहे हो वो कहता है कि बैठो थोड़ी देर मेरे पास भी तो बैठो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी भी गुरुद्वारे में गए हो, किसी मंदिर में गए हो सके जरूर 15-20 मिनट बैठकर नाम जप कर वहां से आया करो, तो कुछ मिलेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। समझाओ अपने मन को, समझ मन बौरा रे, 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 बिखे बाच हर राच, बिखे बाज हरि राज, बिखे बाच हर राच, बिखे बाज हरि राज, समझ मन बौरा रे, समझ मन बौरा, समझ मन बौरा रे, समझ मन बौरा रे, नावण चले तीरथी, नावण चले तीरथी, मन खोटे तन चोर, एक पाँव लथी नाते आ,
होर। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मेरे गुरु नानक पातशाह इस शब्द में समझाते हैं कि नावन चले तीर्थी, मन खोटे तन चोर। मन में खोट है, तीर्थों पे जाके भी कई लोग चोरी करने जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। असल में जितने ठग आपको तीर्थों में मिलेंगे ना, और कहीं पर नहीं मिलेंगे। उन्हें पता है यहाँ पर धर्म के नाम पे जितना चाहे उतना ठग लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी में तो यहाँ तक लिखा है, वो हर के संत ना आखिए, बनारस के ठग। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नावन चले तीर्थी, मन खोटे तन चोर। कई लोग गुरुद्वारे, मस्जिद, मंदिर चप्पल चोरी करने भी जाते हैं, मोबाइल चोरी करने भी जाते हैं, चोरी करने ही आते हैं। अब तीर्थों में स्नान वो भी कर रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर मन में क्या है कि चोरी करनी है। गुरु नानक पातशाह कहते तू जा रहा है तीर्थों पे स्नान करने, ये सोच के भी जाता है कि वहां मेरे पाप कट जाएंगे। पर कहते हैं एक पाप अगर तू उतार भी लेगा, दो चढ़ा कर आएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक भाव लथी नातियां, दोए भाव चढ़िए होर। और केवल साथ संगत जी ये चोरों की बात नहीं है, हम अपने आप को ही ले लें। अगर सोच सही नहीं है वहां जाकर, राज तो कई बार ये बात कहता है, सोचता भी है। एक तो होता है चोर चोर दिखाई देता है, एक तो होता है ठग ठग दिखाई देता है, डाकू डाकू दिखाई देता है। जो धर्म के नाम पर ठगते हैं ना, वो नहीं छूटेंगे, क्योंकि वो दिखाई नहीं देते, लोग उन पर भरोसा करते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बार वो बख्शे जा सकते हैं, पर जो धर्म पे नाम पे ठगता है उसका बख्शा जाना बहुत मुश्किल है, बहुत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाहर तोती तुमड़ी, अंदर विष निकोर। ये तुमड़ी उसी चीज को कहा है जिसको कबीर जी ने लौकी कहा है। बाहर तोती तुमड़ी, अंदर विष निकोर, साध पले अणनातियां, चोर से चोरा चोर। ये कितनी प्यारी पंक्ति है, कितने गहरे अर्थ है इसके। साध पले अणनातियां। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, मेरे गुरु नानक सृष्टि के मालिक कहते साधु जो नाम जपते हैं वो तीर्थों पे स्नान ना करके भी साधु हैं, और चोर तीर्थों पे स्नान करके भी चोर ही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। साध पले अणनातियां, वो ना नहाएं, ना स्नान करे तीर्थों का तो भी साधु हैं, क्योंकि नाम जपते हैं। चोर और तीर्थों पे स्नान करता भी है तो भी चोर ही है। तो वड्याई किसकी है? नाम की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समझ मन बारा रे, 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 बिखे बाच हर राज, बिखे बाज हर राज, बिखे बाच हर राज, बिखे बाज हर राज, समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे, समझ मन बारा रे, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बिखे बाच हर राज, समझ मन बारा रे। सोचे सोच न होवे। गुरु नानक पातशाह सिद्धों को ज्ञान दे रहे हैं। सिद्धों ने सवाल किया था,
गुरु नानक पातशाह ने सिद्धों से सवाल किया कि सचारा हो ये कि कूड़ा टूटे पाल। सिद्ध जवाब दे रहे हैं कि अगर कूड़ को हटाना है तो ये कर्म करने हैं। गुरु नानक पातशाह ने जिन कर्मों का खंडन किया उसकी विचार इस पौड़ी में है। सोचा सोचना हो गई जे सोचे लखवार, चुप है चुप ना हो जलाए हाल उतार। आगे एक एक पंक्ति के अर्थ हैं, एक एक पंक्ति के प्रकरण हैं कई, और हमारी पंक्ति चालू है सोचा सोचना हो गई। सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति पकड़ी है गुरु नानक पातशाह ने, क्योंकि 99% दुनिया ये मानती है कि तीर्थों पे स्नान करने से पाप मिट जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी बहुत गहरी विचारें, बहुत गहरी, बहुत सारी विचारें अभी तक ली ही नहीं है। इस मन को समझाओ। सारे ज्ञानों में ज्ञान, सारे ध्यानों में ध्यान, सारे महापुरुषों की कमाई के एक ही वचन के नाम को पकड़ लो। बिखे बाज हरे राज। मन को एकाग्रचित करने का सबसे कई तरीकों में से एक तरीका है बाबा नंद सिंह जी के वचन, बे लोड़े मेल जोल को कम करो। भाव शादियों में, पार्टियों में, दोस्तों के महफिलों में, यहाँ वहाँ जितना कम लोगों से मिलोगे उतना मन एकाग्रचित होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बे लोड़े मेल जोल से बचो। सोशल मीडिया से जितना हो सके बचो। सोशल हर चीज की एक, सबको पता है छोटी सी बातें क्या दास बोले क्या बताए। हमारी मर्जी है ना, ग्लास में शराब पीनी है कि दूध पीना है, मोबाइल में क्या देखना है हमारी मर्जी है। कीर्तन भी सुन सकते हो दिन रात, गंदे गाने भी सुन सकते हो दिन रात, हमारी मर्जी है। कर्म हमारे हाथ में है। कर्म करने से हमें कोई नहीं रोक सकता, निरंकार भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कृष्ण जी से सबने कहा कि आप चाहो तो महाभारत रोक सकते थे, कृष्ण जी कहते नहीं, ये गलत फहमी है सबकी। मैं किसी को कर्म करने से नहीं रोक सकता, मेरा काम सही रास्ता गलत रास्ता बताना है। चुनाव इंसान का मैंने कभी नहीं खोया, वरना मैं दुर्योधन को मत बदलना देता, मेरे बस में होता तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये अधिकार निरंकार ने किसी से भी नहीं छीना है। हर इंसान की अपनी चॉइस है, उसने क्या करना है। हम अमृत वेले उठने वाली संगत में से हैं। गुरु नानक ने तर्स किया है, हमें ये ज्ञान मिल रहा है तो हमारे फर्ज दूसरों के कई गुना ज्यादा हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। बिखे बाच हर राज। सर पे रुमाल बंधा हो अमृतला ट्रस्ट का, और आदमी किधर दिख जाए शराब की दुकान के आगे तो लोग क्या बोलेंगे, जरा सोचो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सर पे रुमाल हो अमृतला ट्रस्ट का, अमृत वेले सोया पड़ा हो, किधर एरोप्लेन में भी बैठा हो, चाहे ट्रेन में हो, अगर वो सोया हुआ है, कहाँ का अमृत वेला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी जिम्मेदारी भी उतनी बढ़ जाती है जितना बड़ा नाम हमारे साथ जुड़ा हो। अमृत वेला गुरु नानक का है। बिखे बाज हरे राज। सारे काम छोड़कर भी अमृत वेला संभालो, सारे काम छोड़कर भी नित्यनेम संभालो, नित्यनेम बढ़ाओ। बिखे बाज। दूसरी चीजों से ध्यान कम करके कंसंट्रेशन नाम में लगाओ, और ये डर छोड़ दो, क्योंकि जहाँ नाम है किसी चीज की कमी नहीं हो सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। काम करने जाना है पर डर के नहीं, खुशी से चाव में बैठो। ग्राहक नहीं आया तब तक नाम जपो। गुरु चाहे तो 1 मिनट में उतनी कमाई दे सकता है जो पूरे 8 घंटे में देनी हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, ये ज्ञान हमारे भीतर प्रवेश कर जाए। क्या समझ मन बौरा रे, बिखे बाज हरे राज। बिक को त्यागने की ताकत बख्शे गुरु नानक मुझे भी, और मन एकाग्रचित करके नाम जपने में मन लगे, चाव पैदा हो। गुरु नानक मेहर करे, हम सब पर मेहर करे। धन गुरु नानक। आइए अब समाप्ति करते हैं। कल गुरु नानक पर शतज करके जो वो करवाए, जैसे कराए, फ्री होकर बिल्कुल
मेरा मन है कि जैसे गुरु नानक कराए वो करते जाऊं, बस प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जितने अर्थ करवाने हो करवा ले, जितने नहीं करवाने हो ना करवाए। सहज में चलता है, चलने का मन कर रहा है अभी। पहले ना मैं बहुत सोचता था, बहुत विचार करता था, अब मैंने बहुत कम कर दिया है वो करना, क्योंकि इसमें आनंद बहुत ज़्यादा है। अगर मैं कैलकुलेशन करके चलता हूँ ना तो आनंद कम हो जाता है, और विदाउट कैलकुलेशन चलता हूँ तो आनंद ज़्यादा आता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कि जितना जो गुरु नानक को बुलाने बुला ले, अगर नहीं कुछ आएगा तो फिर कीर्तन तो है ही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो ऐसे लगता है गुरु नानक बुलवा रहा है, वही बोल रहा है, मन को बहुत आनंद आता है। गुरु नानक मेहर करे हम सबको वो आनंद की प्राप्ति हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। समझ मन बारा रे, समझ मन बारा, समझ मन बारा रे, 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 बिखे बाच हर राच, बाज हरि राज, बिखे बाच हर राच, बाज हरि राज, समझ मन बारा रे, 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 समझ मन बारा समझ मन बारा समझ मन बारा रे, समझ मन बारा समझ मन बारा रे, 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 बिखे बाच हर राज, हरि राज, बिखे बाच हर राज, हरि राज, समझ मन बारा रे,
कबियो बाज बेनती चौपई हमरी करो हाथ दे रक्षा पूर्ण हुए चित्त की इच्छा तो चलन मन रहे उठ जाग सवेरे जी मना तेरे नाम जपन दा वेला। उठ जाग सवेरे जी
बुराइयां बुराइयां वाच कर मधु करनी आपको अपनी कहने के दू जिन्नी नाम पे आया गए मुस्कान नानक सिंह उजले कहते छुट्टी नाल बोलो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी शुक्राना 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 हर पल हम शुक्र मनाए शुक्राना शुक्राना आप हैं दयावान कर जग गुणगान आप हैं दयावान कर जग गुणगान मेरे गुरु जी सदा सहाय शुक्राना 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 गुरु जी आपका करे शुक्राना गुरु जी आपका करे शुक्राना रिश्ता हमारा बड़ा सुहाना रिश्ता हमारा बड़ा सुहाना धन्य हुआ है जीवन मेरा धन्य हुआ है जीवन मेरा गुरु जी कृपा बरसाए शुक्राना 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 सरसगा सरसमा सरसपा मा गा रे ग रे सा सरसगा सरसमा सरसपा मा गा रे ग रे सा ग ग सा नि ध ग नि ध ग ग प म ग रे ग रे सा गुरु जी ने हमको दिया है सहारा आपके बिना नहीं कोई है हमारा हाँ गुरु जी ने हमको दिया है सहारा आपके बिना नहीं कोई है हमारा हर संकट में रहते संग में हर संकट में रहते संग में हम फिर क्यों घबराएं शुक्राना 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 रोशन मन में ज्योत जगाए रोशन मन में ज्योत जगाए घर परिवार में रौनक आए घर परिवार में रौनक आए सब आशाएं पूर्ण कर दी
सब आशाएं पूर्ण कर दी जो हम मन में लाए। शुक्राना शुक्राना आप हैं दयावान करे जग गुणगान। आप हैं दयावान करे जग गुणगान। मेरे गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की।